اداروں کو آپ نے سندھ ہاؤس میں رکھا ہے، انشاءاللہ ان کو ہم اپنے انجام تک پہنچاتے رہیں گے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے اسلام آباد میں سندھ حکومت کے سندھ ہاؤس پر حملہ کر دیا۔ ہجوم پہلے سندھ ہاؤس کے مین گیٹ پر چڑھ گیا، پھر لاتیں مار مار کر چھوٹا گیٹ توڑ دیا، دیواروں پر لوٹے برسائے۔ تحریک انصاف کے دو اراکین قومی اسمبلی توڑ پھوڑ کرنے والوں کی قیادت کرتے رہے۔ ہلڑ بازی کرنے والے ڈنڈا بردار کارکن 2 MNAs عطا اللہ اور فہیم خان کے ساتھ گیٹ توڑ کر سندھ ہاؤس میں گھس گئے۔ ایک MNA عطا اللہ خود گیٹ توڑنے والوں میں شامل رہے۔ دھمکی دے ڈالی کہ سندھ ہاؤس میں بیٹھے غداروں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ سندھ ہاؤس میں تعینات سندھ پولیس کے اہلکار ہجوم کے سامنے بے بس۔ اسلام آباد پولیس بھی کارکنوں کو روکنے میں ناکام۔ بعد میں پولیس نے دونوں اراکین قومی اسمبلی سمیت متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ بچو اس وقت سے جب عمران خان نے ہمیں یہ کال دے دی، نوجوانوں کو یہ کال دے دی کہ خود جا کے اس ہارس ٹریڈنگ کو روکو۔ نہیں ہو سکتا، یہ تو پھر ملک میں اشتعال پھیل جائے گا، ملک جو ہے کسی اور طرف چل پڑے گا۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور میں نے IG کو فون پہ کہا کہ کچھ فوراً لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ احتجاج تو ہوگا، جو آگ انہوں نے لگائی ہے اس آگ کے اوپر عوام ریئیکٹ تو کرے گی۔ یہ اب 1990 نہیں ہے کہ چھنگا مانگا چل جائے۔ شیخ رشید نے حملہ آور کارکنوں اور MNAs کو گرفتار کروایا۔ شہباز گل نے MNAs کو منٹوں میں چھڑوا لیا۔ کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کل دھمکی دی، آج کارکن سندھ ہاؤس پر چڑھ دوڑے۔ فواد چودھری نے کہا کہ سندھ ہاؤس کو نیا چھانگا مانگا بنائیں گے تو عوام کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہباز گل بھی ان کے ہمنوا بن گئے، بولے عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے بکے تو رد عمل آیا، یہ تو ہوگا، جو آگ انہوں نے لگائی وہ تو پھیلے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید ناخوش، بولے معاملہ اب کہیں اور جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی بھی دھیمے پڑ گئے، کارکنوں سے قانون ہاتھ میں نہ لینے کی اپیل کر دی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان نے سندھ پر لشکر کشی کروا کر اپنا اصلی بغض ظاہر کر دیا۔ ہم قانون کو ہاتھ میں لینے والے نہیں، تاہم جانتے ہیں کہ سرکش عناصر سے کیسے نمٹا جاتا ہے۔ عوامی نمائندوں اور اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے خاندانوں کی قیام گاہ پر حملہ کروا کے عمران خان نے چادر اور 4 دیواری کا تقدس بھی پامال کیا۔ پارلیمان، PTV اور پارلیمنٹ لاجز پر حملہ کرنے والوں نے سندھ ہاؤس پر حملہ کر کے پستائیت کا اظہار کیا۔ عمران خان اپنی شکست دیکھ کر بکھلا چکے ہیں، اوچھے ہتھ کنڈوں سے 172 کی حمایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت تو نہیں بچا سکتے، لیکن اگر کوئی بچی کچی عزت بچا سکتے ہو تو وہی بچا کر نکل جاؤ بھائی۔ آپ ایک منتخب حکومت تو ہو نہیں کہ ڈٹ جاؤ، اس لیے غنڈہ گردی کا ہی آپشن رہ گیا ہے، یہ بھی ہمیشہ الٹا پڑتا ہے۔ سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے۔ یہ عدم اعتماد کی پہلی تحریک ہے جس میں نہ کوئی ووٹ خرید رہا ہے اور نہ کوئی ووٹ بیچ رہا ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ قابلی کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے، وفاقی وزیر کہتے ہیں 10 لاکھ کے مجمع سے گزر کر عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنا ہوگا۔ جب کوئی ووٹر ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کر لے تو اسے 10 لاکھ تو کیا 10 کروڑ کا مجمع بھی نہیں روک سکتا۔ ایک بار پھر اپیل ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنے اپنے جلسوں کا پروگرام ملتوی کر دیں۔ ان جلسے جلوسوں میں اگر کوئی مر گیا یا مروا دیا گیا تو سب پچھتائیں گے۔
हमले को हम सिंध सूबे पे हमला समझते हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन में जो बदतरीन दहशतगर्दी का मुजाहरा इमरान खान की टाइगर फोर्स ने किया और बशमूल उनके साथ जो इस्लामाबाद के पुलिस थी वो खामोश होकर तमाशा देखती रही। आज अगर सिंध की पुलिस नहीं होती तो जितने भी पीपुल्स पार्टी की यहाँ एमएनएस, एमपीएस या मिनिस्टर सिंध हाउस में अपनी फैमिली साथ ठहरे हुए हैं, ये लोग अंदर घुसते और उनकी जान को खतरा था। फिर बन्नी गाला भी हमने देखा हुआ है और प्राइम मिनिस्टर हाउस भी हमने देखा हुआ है। फिर देखते हैं आपको कौन माई का लाल बचाता है। यहाँ पर मुकाबला हो रहा है इमरान खान को खुश करने का। ये जो इमरान खान के शेरू हैं ये वो काम करते हैं जिससे इमरान खान खुश होता है। ये ऑपोजिशन के मेंबर्स को गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं इसलिए कि इमरान खान के अनाज को तस्कीन पहुंची है। सिंध हाउस पर हमला सिंध सूबे पर हमला समझते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रेड जोन में इमरान खान की टाइगर फोर्स ने दहशतगर्दी का मुजाहरा किया, सरकारी अमलाक पर धावा बोला गया, दहशतगर्दी के हमले किए तो आपके एमएनए भी महफूज नहीं रहेंगे। हमने पीएम हाउस और बनी गाला देखा हुआ है, दोबारा ऐसा हुआ तो कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकेगा। शराफत से कह रहे हैं कि इस तरह का वाकया दोबारा नहीं होना चाहिए वरना हम भी मजबूर होंगे। सईद गनी ने कहा कि इमरान खान के शेरू लोगों को गालियां देते हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने रद्दमल दिया तो पीटीआई वाले नजर भी नहीं आएंगे। ये इमरान खान को खुश करने का मुकाबला चल रहा है। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुन एमएनए राजा रियाज के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, राजा रियाज से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। पेशावर में नूर आलम खान के खिलाफ एहतजाज, नारोवाल में वजीहा कमर के खिलाफ कारकुनों का मुजाहरा, पार्टी के साथ रहने का मुतालबा। इस्लामाबाद की फिजाओं में माइनस इमरान खान की गूंज, तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और कराची से एमएनए नजीब हारून ने वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ारत उस्मा की कुर्बानी मांग ली। कहा पार्टी के अंदर किसी और रहनुमा को सामने लाया जाए जिस पर पार्टी और इत्तेहादियों का इत्तेफाक हो। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि 2008 और 2013 की असम्बलियों ने भी एक वज़ीर आज़म के हटने के बाद भी मुद्दत मुकम्मल की, ये रिवायत जारी रहनी चाहिए। पार्टी से इख्तिलाफात के बावजूद तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान का साथ देने का भी ऐलान किया। गुज़िश्ता रोज एमक्यूएम पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा ने भी इमरान खान से मुतालबा किया था कि वो पार्टी के अंदर किसी और रहनुमा को सामने लाएं जिस पर इत्तेफाक राय किया जा सके। ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। हमें खान साहब से इख्तिलाफ है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं उधर लाखों का मजमा होगा, उसमें से गुजर के जाना पड़ेगा, कैसे जाएंगे आप? मैं फवाद चौधरी को जबरी डाल के जाऊंगा। ये मेरा हक है। अरे एक को नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान तक वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आर्टिकल 63(1)(a उसके तहत तो स्पीकर को ये जो डिक्लेरेशन का इख्तियार है कि एक आदमी उसने फ्लोर क्रॉस किया या नहीं किया, ये इख्तियार जो है ये लीडर ऑफ दी पार्टी का है और उसके बाद स्पीकर ने उसकी डिक्लेरेशन जारी करनी है। ये तो बेतुकी बात है कि आइन कहे कि नहीं पहले तो आप खिलाफ वर्जी कर लें और फिर हम आपको सजा देंगे। तो खिलाफ वर्जी से ही रोकना जो है वो आर्टिकल 63(1) में। क्या स्पीकर पीटीआई अरकान को वजीर आजम के खिलाफ वोट डालने से रोक सकता है? क्या वोट डालने से पहले ही बागी अरकान नाअहल हो सकते हैं? हुकूमत का फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक आर्टिकल 63(a) की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने और बागी अरकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इमरान खान की 27 मार्च को डी चौक में भरपूर इज्तिमा की तैयारियों की हिदायत। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाएगी कि जब एक पार्टी वाज़ेह तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस हो तो उनके वोट की क्या हैसियत होगी। पैसों के बदले वफादारियां बदलने के वोट की कानूनी हैसियत क्या है? क्या वफादारियां बदलने वालों को दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाजत होगी? इमरान खान ने -1 का फॉर्मूला मुस्तरद कर दिया। सियासी कमेटी के इजलास में कहा ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता, ये लोग -1 का मुतालबा कर रहे हैं, इससे हम और ऊपर जाएंगे।
तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में कहा कि ये चाहे जितना भी पैसा लगा लें, इनका मुकाबला करेंगे, ऐसे इकदाम करेंगे कि मुस्तकबिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जुर्रत नहीं होगी। कहा जा रहा है कि उनको पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर की जा रही है। मंतक देखिए, अक्सरियत वहां नून लीग की, मेंबरान की सूबाई असेंबली की, अकलियत में ये होंगे। जब चाहे नीचे से कालीन खींच ले, तो उस चीफ मिनिस्टरशिप का और उसकी मुद्दत का क्या भरोसा। ये एक गैर सियासी फैसला होगा और मुझे इस घराने से जो बड़ा वफादार है, ताल्लुकदार है, गैर सियासी फैसले की हरगिज तवक्को नसी न है। फिर कहा जा रहा है कि एनक्यूएम तो बिल्कुल छोड़ गई और किस पर भरोसा कर रही है, आसिफ अली जरदारी पर। भाई पीपल्स पार्टी की तो नफी है आप कराची में। पीपल्स पार्टी ने जो कराची के शहरियों का जो हाल किया है, जो सलूक किया है, क्या एनक्यूएम का कारकुन उससे गाफिल है? 15 साल में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, वो आपने देखा जो कुछ किया, और पिछले 4 साल में एनक्यूएम के साथ जो सलूक बरता गया है वो किससे पोशीदा है? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वो अपने इत्तेहादियों के मिजाज और सोच को अच्छी तरह समझते हैं, वो सियासी फैसले करते हैं। पीटीआई के एमएनए समझदार लोग हैं। तहरीक अदम एतमाद में जमात से हटकर फैसला करना बहुत बड़ी सियासी गलती होगी। तहरीक इंसाफ में -1 की गुंजाइश नहीं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, जीडीए ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो हमारे साथ हैं। मुनहरिफ अराकीन को शो कॉज नोटिस जारी करने जा रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब 25 मार्च को आ जाएं, बैठें, हम उनको पानी वानी पिलाएंगे। अब हमें खाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। चलो गवर्नर राज लगाते हैं, कल नहीं आज लगाते हैं। जो सारे पाकिस्तान में है जारी, सिंध में भी वो नाच लगाते हैं। वजारतों की तख्ती पर अब होगा नाम हमारा, कीमत चाहे जो भी हो, इंदराज कराते हैं। चलो गवर्नर राज लगाते हैं, चलो गवर्नर राज लगाते हैं, चलो गवर्नर राज लगाते हैं। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाओ, कल नहीं आज लगाओ। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को चैलेंज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सोशल मीडिया पर नज़्म चलो गवर्नर राज लगाते हैं शेयर कर दी। नज़्म में खुलकर गवर्नर राज की वजाहत भी की गई है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं, इमरजेंसी या गवर्नर राज नाफिज करने का इख्तियार भी उनके पास नहीं। तहरीक एतमाद के बाद वज़ीर आज़म किसी किस्म का तबादला या तकर्रुरी नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की पोस्टिंग अकरबा फरवरी की वाज़ेह मिसाल है। इमरान खान ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को वर्ल्ड बैंक में बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनात करने की मंजूरी दी है। वो 3.5 साल से इमरान खान के साथ बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी काम कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकने कौमी असेंबली आमिर तलाल गोपांग ने दावा किया है कि हुकूमत के 30 से ज़ायद एमएनएस अपनी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं या आने वाले चंद दिनों में वो इजहार कर देंगे। हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में आमिर गोपांग ने सूरह यासीन पर हाथ रखकर कसम खाते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए उन्होंने किसी से ना 1 रुपया लिया और ना ही उन्हें ऐसी पेशकश की गई है। ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च 28 मार्च का नतीजा हासिल करने के बाद ही वापस जाएगा। उनकी धमकियां और मिन्नतें समाजतें काम नहीं आएंगी। हम पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। नून लीग के राना सनाउल्लाह का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, स्पीकर कौमी असेंबली इमरान खान की टाइगर फोर्स का रुकन है। आइन वाज़ेह है कि जब कोई वोट इस्तेमाल करता है तो उसके बाद इस शख्स का इतलाक होगा। आयशा गुललाई केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। ऑपोजिशन जमातों का स्पीकर कौमी असेंबली के नाम खत फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद की करारदाद का नोटिस अरकान में तकसीम करने का मुतालबा। खत में कहा गया है कि 8 मार्च को वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद जमा कराई थी। रूल्स का तकाजा है कि सेक्रेटरी कौमी असेंबली अदम एतमाद की करारदाद का नोटिस अरकान को देते हैं। अभी तक सेक्रेटरी कौमी असेंबली ने करारदाद का नोटिस अरकान असेंबली में तकसीम नहीं किया।
وفاق کے ساتھ پنجاب میں بھی تبدیلی کی تیاری. ناراض اراکین نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو استعفے کا الٹیمیٹم دے دیا. کہا پیر تک بزدار نے استعفیٰ نہ دیا تو مزید بات چیت نہیں ہوگی. ناراض ارکان کی ڈیمانڈ پر حکومتی وفد وزیر اعظم کو بریف کرے گا. سندھ ہاؤس میں مقیم تحریک انصاف کے باغی اراکین محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے. منتقلی کی منظوری شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے دی. 3 خواتین ارکان کو سکھر منتقل کیے جانے کی اطلاعات. ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کو سول انٹیلیجنس ایجنسی نے ارکان کی منتقلی کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے. حکومتی ارکان کو صبح سویرے مختلف گاڑیوں میں منتقل کیا گیا. اس وقت ہارس ٹریڈنگ کا جو دارالخلافہ ہے وہ اس وقت سندھ ہاؤس ہے. ہم اس کے اوپر ایک اسٹرانگ ایکشن جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں. ہاؤس میں آج رات پولیس گردی کی گئی تو نتائج کے ذمہ دار عمران خان اور وزیر داخلہ ہوں گے. اراکین قومی اسمبلی کے خلاف پولیس گردی. پارلیمنٹ پر حملہ تصور ہوگا. پارلیمنٹ لاجز والی حرکت سندھ ہاؤس میں دہرائی گئی تو سنگین نتائج ہوں گے. سابق وزرائے اعظم راجہ پرویز اشرف یوسف رضا گیلانی اور شاہد خاقان عباسی نے سیکرٹری داخلہ پولیس اور اسلام آباد انتظامیہ کے حکام کو خبردار کر دیا. کہا وہ کسی سیاسی عمل کا حصہ نہ بنے. تحریک عدم اعتماد کے آئینی عمل میں پولیس اور انتظامیہ فریق بنی تو یہ آئین شکنی ہوگی. آئین شکنی کرنے والے اور ان کی مدد کرنے والوں کو سزا کے لیے تیار رہنا ہوگا. کہا عمران خان 172 ارکان نہیں لا پا رہے. پولیس اور انتظامیہ کے ذریعے ان کے اغوا کی تیاری ہے. اوچھے ہتھ کنڈے اعلان ہیں کہ عمران خان اکثریت اور ایوان کا اعتماد کھو چکے. نہیں چھوڑوں گا کہنے والے سب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. کوئی ساتھ رہنے کو تیار نہیں. وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزیر اسد عمر کی انتخابی مہم میں شرکت پر الیکشن کمیشن کے نوٹس معطل کرنے کی استدعا مسترد. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم امتناع جاری کرنے سے انکار. عدالت نے ریمارکس دی کہ معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے بھی آرڈیننسز کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے. جو کام پارلیمنٹ کے کرنے والے ہیں وہ آرڈیننسز سے ہو رہے ہیں. آئین الیکشن کمیشن کو فیئر الیکشن کرانے کا اختیار دیتا ہے. آئین نے ایک مینڈیٹ دیا ہے جسے ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ختم نہیں کر سکتے. 14 مارچ کو الیکشن کمیشن میں پیش تو ہونا چاہیے تھا. آپ کا اپنا کانڈکٹ بھی درست نہیں تھا. کم از کم وکیل کے ذریعے ہی پیش ہو جاتے. ابھی نوٹس معطل نہیں کریں گے. پہلے الیکشن کمیشن کو سنیں گے. عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا. معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری. وزیر اعظم اور وفاقی وزراء نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری ہونے کے بعد مختلف جلسوں میں شرکت کی تھی جس پر الیکشن کمیشن نے نوٹسز جاری کیے تھے. موسم کی خرابی کے باعث وزیر اعظم عمران خان کا پارا چنار کا دورہ ملتوی کر دیا گیا. ذوالفقار اسٹیٹ سے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا. وزیر اعظم کو آج پارا چنار میں جلسے سے خطاب کرنا تھا. ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ کرم کے لوگوں سے معذرت کرتے ہیں. جب بھی موقع ملا یہاں آئیں گے. آپ نے بھرپور طریقے سے بلدیاتی انتخابات میں شرکت کرنی ہے. ترین گروپ کی اپوزیشن سے ملاقاتیں. حکومت کو ہری جھنڈی دکھا دی. حکومتی شخصیات سے ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جہانگیر ترین سے ٹیلی فون پر رابطے کی کوشش ناکام. سیاسی مستقبل کے فیصلے کے لیے جہانگیر ترین کے گھر پر گروپ کا اجلاس. گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ عمران خان کے پاس گورنر راج سمیت مختلف آپشنز موجود ہیں. شہباز، فضل الرحمان اور زرداری تینوں نشانے پر ہیں. مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ جو لوگوں کو کہتا تھا نہیں چھوڑوں گا اس کو اپنے لوگ چھوڑ گئے. 22 کروڑ عوام عمران صاحب کو گھر جانے کے واسطے دے رہے ہیں. عمران صاحب مانگے تانگے کا اقتدار اپنا نہیں سمجھنا چاہیے. اکثریت ختم، غنڈہ گردی شروع. مغرب کی جمہوریت کے مطابق ابھی تک آپ کا استعفیٰ آ جانا چاہیے. آپ کے اراکین اتحادی اور عوام آپ کو مسترد کر چکے ہیں.
44% पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद से पहले इस्तीफा देने का मशवरा दे दिया। 33% ने तहरीक अदम एतमाद का डट कर सामना करने का कहा। 42% पाकिस्तानियों को यकीन है कि अदम एतमाद पर वोटिंग पर ऑपोजिशन कामयाब होगी। अलबत्ता 26% अफराद को हुकूमत की कामयाब होने की उम्मीद है। 48% पाकिस्तानियों ने तहरीक अदम एतमाद में हुकूमती इत्तेहादियों को ऑपोजिशन को सपोर्ट करने का मशवरा भी दिया, जबकि 27% ने वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट देने की दरख्वास्त की। अदम एतमाद कामयाब होने पर 27% अफराद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के हक में, 17% बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। की राह में एक अशरे बाद अपने घरों को वापस आने वाले खानदानों के इस्तकबाल में ग्रैंड जलगे का एहतमाम किया गया। 15,600 से ज्यादा खानदानों के तकरीबन 1 लाख अफराद की बहाली की जाएगी। जरगे से कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने खिताब किया। कहा, पाक फौज मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। इस मौके पर मुल्क और मशरान ने सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। कराची के इलाके शांति नगर की झोंपड़ियों में आग कैसे लगी? आग से झुलसकर 5 कमसिन भाई बहन जाम बहक हो गए। पुलिस ने बिजली के गैर कानूनी कुंडे और शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने का खदशा जाहिर कर दिया। जाम बहक बच्चों के वालिद का कहना है कि रात 2 बजे आग लगने की इत्तला मिली, वो घर पर नहीं था। फायर ब्रिगेड भी आग बुझने के बाद पहुंची। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत आग बुझाई। आग लगने से 5 झोंपड़ियां मुकम्मल तौर पर जल गईं। के इलेक्ट्रिक का वाक़े पर इज़हार अफसोस, कहा जिस जगह वाक़या रोनुमा हुआ वहां KE का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, मजीद तहकीकात जारी हैं। बलूचिस्तान के किला सैफुल्लाह में खेतों में ट्यूबवेल के लिए करवाई गई बोरिंग ने 8 साला बच्चे की जान ले ली। बच्चा खेलते हुए 200 फुट गहरे कुएं में जा गिरा। मशीनरी न होने से बच्चा 17 घंटे कुएं में फंसा रहा। बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, तदफीन हो गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। लियारी में बॉक्सिंग ट्रायल्स के दौरान जान की बाजी हारने वाले 19 साला ताहिर अली की तदफीन। सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत होने वाले ट्रायल्स में ताहिर अली गर्दन पर मुक्का लगने से जख्मी हुए थे। इवेंट में फौरी तिब्बी इमदाद का कोई इंतजाम नहीं था। जराये के मुताबिक ताहिर अली 54 किलोग्राम वेट के बॉक्सर थे, लेकिन ट्रायल्स में उनका मुकाबला 57 किलोग्राम वेट के बॉक्सर से कराया गया। गुज़िश्ता साल भी मुकाबले के दौरान एक बॉक्सर रिंग में ही जिंदगी की बाजी हार गया था। कोयटा के पुलिस पश्तूनाबाद स्टेशन में कमसिन बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जाग गई। 4 जुलाई के इस वाक़े में मुलव्विस सब इंस्पेक्टर फतेह शेख और हवालदार नसरुल्लाह को गिरफ्तार करके उसी थाने में बंद कर दिया गया है जहां पर उन्होंने मोबाइल चोरी के इल्जाम में बच्चे पर तशद्दुद किया था। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सियासी हलचल है। ऑस्ट्रेलियाई टीम को सदारती सिक्योरिटी दी गई है। इस सूरत हाल में पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज के रावलपिंडी में शेड्यूल तमाम मैचेस लाहौर शिफ्ट कर दिए हैं। वज़ीर दखल शेख रशीद का ऐलान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट फिर से लाहौर में शेड्यूल है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान व्हाइट बॉल सीरीज 29 मार्च से रावलपिंडी में शेड्यूल थी। PCB को वेन्यू की तब्दीली के हवाले से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हतमी जवाब का इंतजार है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। मुल्क भर में आज शब बरात मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद में चिरागां, खुसूसी इबादत का एहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शब बरात पर कौम को मुबारकबाद। कहा, अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए और हमें अमन व खुशहाली से नवाजे। की रात है फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है, आम लुत्फ़े खुदा आज की रात है। एक तरफ यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी, दूसरी तरफ कीमतों में इजाफा।
यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान से कबल 1 किलो बेसन की कीमत में 30 रुपए और 1 किलो चावल की कीमत में 25 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। 1 किलो बेसन 160 रुपए से 190 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़श्ता दिनों मुख्तलिफ ब्रांड के घी और दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा किया गया था। जैसे मुसलमानों का त्यौहार आता है, बड़ा ईद आती है, जैसे हमारे हिंदुओं का भी ये बड़ा त्यौहार जिसको होली बोलते हैं। मुसलमान भाई भी हमारे साथ होली मना रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी को होली की खुशियां मुबारक। जैकबाबाद में होली के दिन की तकरीबात, थल का सहरा भी होली के रंगों में रंग गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार की भी हिंदू बरादरी के साथ होली के त्यौहार समदम 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 मस्त कलंदर कलंदर लौर कलंदर कलंदर लौर कलंदर असिया लौर कलंदर समदम मस्त कलंदर कलंदर लौर कलंदर कलंदर लौर कलंदर असिया लौर कलंदर। लाहौर में लाहौर कलंदर्स के सपोर्ट स्टाफ के एजाज में तकरीब CEO आतिफ राना, COO समीन राना और हेड कोच आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर्स के मकबूल तराने पर रक्स किया। विकेट कीपर बैट्समैन और कौमी टीम के नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान हर फन मौला बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ बाल भी अच्छे काटते हैं। शाहीन आफरीदी की बेहतरीन हेयर ड्रेसिंग की उन्होंने ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर ली। साथ ही लिखा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो ये नहीं कर सकता। कराची टेस्ट के सेंचुरियन और मैच बचाने वाली स्किल्स की कोई हद नहीं। कौमी टीम के फास्ट बॉलर ने बाल काटने पर मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया भी अदा किया। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ियों ने 7 स्टाफ मेंबर्स के साथ लाहौर के जिमखाना क्लब में गोल्फ खेली। कप्तान पैट कमिंस का कहना है कि गोल्फ खेलने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ा, लेकिन यहाँ गोल्फ खेलकर अच्छा लगा।